कौन सी false? If you come to know which statement is true or which is false, then your answer is there in front of you, right? A option, B option, C option, whatever you want to know, it is clear from your true and false. So we'll be doing true false of next chapter. I am writing over here. You also write it side by side so that you can revise it. Right? First question: a line graph. A line graph in which all the line segments, in which all the line segments. जो students बैठ रहे हैं अभी, settle down fast and start writing. Form a part of a single line is called a linear graph. A linear graph. You have done introduction to graph chapter. In that we have true false, right? True false will help you a lot in knowing about assertion reason also. Okay, keep writing. लिखते लिखते उसको सोचते भी जाओ, साथ साथ में आंसर लिखते जाएंगे. वेरी गुड. आपके नोट फॉर्म में रेडी हो जाएंगे. सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग. The process of fixing a point be plotting a point on graph. ओके, ग्राफ के ऊपर जब भी आप कोई पॉइंट फिक्स करते हो, इट मींस यू आर प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन द ग्राफ इन अ प्लेन. आपको जो ग्राफ जो आप ड्रॉ करते हो, एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो, एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हो. मेरा प्लेन क्या है? मेरा ब्लैक बोर्ड यहाँ पे. आपका प्लेन क्या है? आपका पेपर जिसके ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो. दैट इज द प्लेन. ओके, आंसर अभी हम डिस्कस करेंगे. कीप राइटिंग. जिससे उसको समझ आ रही, साथ साथ आंसर्स खुद करते रहो अपने आप. Next is in distance time graph. In distance time graph, you have done in science also. आपको पता है distance time graph का क्या मतलब है? In distance time graph, time represents independent variable. In distance time graph, time represents independent variable. And distance as a dependent. We will write 5 and then discuss, and then we write another 5. The relationship between dependent variable and independent variable
The relationship between dependent variable and independent variable is shown on x-axis and y-axis respectively. Last point, according to the x coordinate is called ordinate and y coordinate is called abscissa. In x, y point. Clearly, I am writing in detail so that आपका doubt ना रहे कि क्या true है तो वो क्यों है, false है तो वो क्यों है. We are going to discuss now. We have written 5 points. After this, we will be picking another chapter. उसके भी हम 2 calls करेंगे so that आपके recall हो जाए chapter. Let us discuss first one. First one is a line graph in which all the line segments form a part of a single line is called a linear graph. Is it true? पहले मैं एक सैंपल यहाँ पे बनाना चाहती हूँ. You should know कि हमारे पास होता क्या है ग्राफ के अंदर. आपको भी पता है, बट इसको लिख लो सामने. y axis, this is x axis, so that आप देखते रहो इसको साथ साथ में. This is origin. वेट में थोड़ी सेटिंग करते हैं इसकी. आप नॉर्मली इसको ऐसे भी लिख सकते हो. नॉर्मली आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप इसको लिखते हो y, इसको लिखते हो x, दिस इज 0. ओके. एंड जब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको पास एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट आया, तीसरा पॉइंट आया. तो ये लाइन सेगमेंट आपके पास बनी, छोटी छोटी लाइन सेगमेंट आती हैं और फिर आप इनको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करते हो. डिफरेंट पॉइंट्स आप ड्रॉ करते हो. यहाँ कोई और पॉइंट है, यहाँ कोई और पॉइंट है, उसकी कोऑर्डिनेट तो 0 होती है. आप उनको ज्वाइन करते हो और एक लाइन आपके पास डेवलप होती है. ओके. दे आर आस्किंग अ लाइन ग्राफ. क्या ये लाइन ग्राफ है? पहले तो ये क्लियर होना चाहिए. इज इट अ लीनियर ग्राफ? Raise your hand. Yes. Who say yes, this is linear graph? Yes, this is linear because it is made up of lines. Okay. They are asking in a line graph in which all the line segments form a part of a single line. These are the parts of single line. Okay. OA, AB, BC. These are the parts of single line. Is it true? This is called linear graph. जो आपने अभी अभी किया है. Is it true? Raise your hand. Who say true? Yes. Write down. ट्रू फॉल्स से आपकी असर्शन इधर बहुत इजी हो जाएंगे. सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना है. ट्रू है y, फॉल्स है तो y. Second is the process of fixing a point means plotting a point on graph in a plane. प्लेन क्या है आपके पास? ये एक प्लेन बना लिया. जहां भी आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, कहीं पे भी इट बिकम्स अ प्लेन फॉर यू. ओके. चाहे कोई वॉल पे कर रहा है, चाहे कोई पेपर पे कर रहा है, चाहे मैं अपने बोर्ड पे कर रही हूँ, इट बिकम्स अ प्लेन. तो प्लेन के ऊपर जब भी हम पॉइंट को फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लॉटिंग अ पॉइंट.
Is it true? Yes, this is true. Second is also true. This is new for you. इसको underline कर लो, स्टार लगा लो. जो आपको थोड़ा सा सोचने में मुश्किल लग रही है, उनको स्टार लगाते जाओ. Very good. कुछ चीजें होती है ना, इमीडिएट आपको पता चल गया कि ये पढ़ा हुआ है, याद आ गया. Which is new for you, स्टार लगाओ उसको. Okay, you should know कि something is new you have learned. Put a star in front of second point. Okay, next is third point. In distance time graph, time represents independent variable and distance as a dependent variable. Who knows the distance, dependent and independent? What do you mean by dependent and independent? Okay, E section beta, the boy, he was living that first boy. Yes, so explain करो. This is new. I know काफी बच्चों को ये नहीं आता होगा. E section, first child, yes. A dependent variable is the one which depends upon the independent variable. For example, apples and cost. Cost depends on apples, so cost is dependent, whereas apples are independent. Okay, what about distance and time? Time is independent and distance is dependent upon time. So can you tell me आपकी x axis और y axis में time कहाँ पे आना चाहिए? Y पे या x पे? Time will be on x-axis and distance will be on y-axis. X is always independent. जो भी आपकी दो चीजों का ग्राफ बनता है, x axis पे वो चीज आएगी which is independent always. And y axis पे, vertical axis पे वो चीज आएगी which is dependent. आपकी जो हाइट बन रही है, that is dependent. किसकी बात कर रहे हैं? Okay. So in distance time graph, time represents independent variable. Your time will come here in the x-axis time. इसको example की form में अपने सामने एक example लिख लो. This is time and this is distance. Always थोड़ी सी confusion हो जाती है students को, काफी ये सोचने लगते हैं. When you give time to thinking ना, इसका मतलब doubt चल रहा है आपके mind में. ओके, एक रफ में बना के रखो कि टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम विल कीप गोइंग. आपने वॉच पहनी है तो टाइम तो चलता ही जा रहा है. टाइम डजंट सी कि आपकी रिसेस टाइम है या फिर मॉर्निंग है या आफ्टरनून है या इवनिंग है. टाइम डजंट नो. यू हैव टू चेक फॉर द टाइम कि अच्छा अभी कितना टाइम हो गया, मेरे को ये काम करना है. ओके, टाइम इज इंडिपेंडेंट, इट विल ऑलवेज कम ऑन द एक्स एक्सिस. सो दिस इज आल्सो ट्रू. Next is the relationship between dependent variable and independent variable is known as x-axis and y-axis respectively. अब तो पता चल गया सबको. Raise your hand who agree this is true. पता चल गया सबको. दो ही कोऑर्डिनेट है x and y. जो x वाला होगा वो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वाला y एक्सिस है जो हम साइड पे लिख रहे हैं. ठीक है, दिस इज आल्सो ट्रू. The x coordinate is called ordinate and y coordinate is called abscissa. Is it so? Who say true? Raise your hand. अभी कई बच्चों को डाउट हो रहा है ना, उन्होंने ट्रू पे हाथ खड़ा किया ना फॉल्स पे. Who say false? Raise your hand. Yes, this is false. Okay, you know it. Abscissa is x point and ordinate is yes. Yes. Okay, good, beta. Sit down. Head down. E section. Yes, you want to say anything, beta? E section. हाँ जी. मैम क्या मैम फोर्थ क्वेश्चन में फॉल्स आंसर नहीं आएगा? The relationship between dependent variable and independent variable is shown on x-axis and y-axis. मैम एक्स एक्सिस पे मैम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करते हैं, तो फिर मैम ये फॉल्स नहीं आएगा? Yes. The relationship between dependent variable and independent variable is shown on x-axis and y-axis respectively. इसको वेट, इसमें सेंटेंस आपको इनकम्प्लीट है थोड़ा सा बेटा. सिट डाउन. सिट डाउन. यू मीन टू से कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर, तो यू मीन टू से कि एक ही एक्सिस पे आएगा. यू मीन टू से दैट इज इट. ओके, आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे है और यस दिस इज फॉल्स. यस दिस इज फॉल्स.
Please correct it, all of you. This is the way you can ask your doubt. Please stand and ask your doubt अगर बीच में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो. Don't think of कि अगर दो बच्चों ने आंसर बता दिया तो yes it is true only. Think of it deeply, please. Okay. 5 points में हम सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं. And it should be false, of course false. आपको पता चल गया कि x axis पे हम independent ले रहे हैं और y axis पे हम dependent ले रहे हैं. Okay, good beta, thank you so much. चलो next one beta, we are picking the next chapter. Let us write something about mensuration. ये chapter आपका आना है. Next we'll be writing 5 more points. Recall everything. Cube, cuboid, cylinder, their curved surface area, then volume. चैप्टर का नेम लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता होना चाहिए द होल सिलेबस इज टुगेदर. ओके, एग्जाम में भी आपके मिक्स क्वेश्चंस आएंगे. बाय रीडिंग द क्वेश्चन आपको ही जज करना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये. राइट, वी आर राइटिंग मोर. लेट अस टेक इट एज 6 पॉइंट. ओके, फर्स्ट इज एरिया ऑफ एनी टू फेसेस ऑफ क्यूब आर इक्वल. एरिया ऑफ, राइट डाउन, पहले लिख लो सेंटेंसेस, आपको फिर लिखने में फोकस हो जाता है. क्योंकि साथ साथ लिख लो फिर डिस्कस करेंगे. एरिया ऑफ एनी टू फेसेस of a cube are equal. So फिर जरा साथ में, so that you can tell me answer. Second is area of any two faces of cuboid are equal. Please remember any word है यहाँ पे, any मैम, word नहीं करो. मैम एक्सक्यूज मी मैम, 6 पॉइंट मैम दिख नहीं रहा. Okay, so मैं ठीक करती हूँ. It is okay. Area of any two faces, मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ में, अगर दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है. Area of any two faces of a cube are equal. Any को अंडरलाइन करो. ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, किसी भी टू की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी टू फेसेस. थर्ड वन, टू cuboid with equal volume will always have equal surface area. Equal surface area. ऐसे लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, surface area. SA surface area. Two cuboids with equal volume will always have equal surface area. Ratio of area of a circle. Ratio of area of a circle. Ratio की बात हो रही है up and down. To the area of square. To the area of square. सर्कल और स्क्वायर की बात हो रही है, 2D शेप्स की बात हो रही है यहाँ पे. Whose sides equal to radius of circle. ठीक है, मैं आपको कंसेप्ट फॉर्म में बीच में मैंने इक्वल का साइन डाल दिया आपको बताने के लिए कि स्क्वायर की जो साइड है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल है, इज 1:5.
is 1:5. Okay, we will check it after doing. Last point, 2 cylinders with equal surface areas have equal volume also. Now I will call the name. Okay, everybody ready? आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है. B section, सूरज. हाँ जी बच्चे आगे आओ. देखो अगर नहीं आता होगा तो भी बताना है और अगर कुछ ना कुछ बताओ कि हाँ मेरे को समझाओ या whatever you want to ask. कोई डाउट है प्लीज खड़े होके पूछो. Okay, this is the time you are polishing your all concepts. कोई डाउट है तो भी पूछो. आता है तो आंसर बताओ. Okay, can you tell me first one? Area of any two faces of cube are equal. Is it true? This is true. You said true? Yes. Yes. Okay, reason? What is the reason why it is true? Assertion reason में reason भी आता है ना साथ में फिर आपको वहां भी थोड़ा सोचना ही पड़ेगा. Can you tell me how? Okay, sit down. Anyone else from the same section जो reason बताना चाहता है? B section से. क्यूब की शेप सबको पता है क्यूब कैसा होता है? Everybody knows? B section first girl, middle row बेटा. It is not difficult. क्यूब की बात हो रही है. क्यूब में what happens? Think of its faces. क्या शेप होती है? अपने माइंड में शेप लेके आओ. क्यूब की कैसी फेस होती है? This is not difficult. आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है. You're not. E section new child. Yes. Corner. Yes. हाँ जी बेटे first child. Corner boy. हाँ जी बेटे. हाँ जी. Please tell me. What is this is true, no doubt. But why? Because they are equal. Because all the faces are equal. एक क्यूब के अंदर सारे faces equal होते हैं. क्या शेप होती है उसके faces की? Square. स्क्वायर फेसेस को 6 फेसेस को आप इकट्ठा करते हो तो एक क्यूब बन जाता है. वेरी गुड. ऑल द फेसेस आर इक्वल. सबके एरिया सेम होंगे. ओके, व्हाट अबाउट क्यूबॉइड? एरिया ऑफ एनी टू फेसेस. एनी की बात हो रही है, आमने सामने की नहीं बात हो रही है. एनी टू फेसेस जैसे क्या वो इक्वल होते हैं? एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ई सेक्शन थर्ड बेंच गर्ल पीछे. ये Ma'am, yes. ट्रू. Ma'am, this is false. फॉल्स. व्हाई? Ma'am, because in cuboid there are two rectangular faces. There are four rectangular faces and two square faces. Square faces. Is it necessary that they are square? Ma'am, no. No, it is not necessary. They could be bigger or smaller. ठीक है? Yes. रेक्टेंगल में सारे रेक्टेंगल हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं. लेंथ इज बिगर देन ब्रेड्थ, यू नो. Ma'am, yes. ओके गुड बेटा. ओके, तो एनी टू फेसेस की बात करें तो नहीं होगा, बट ये अपोजिट वाले सेम हो सकते हैं. अपोजिट आर ऑलवेज इक्वल, दैट यू नो. ओके, थर्ड वन, दैट इज 8th one. Two cuboids with equal volume will always have equal surface area. Always, they are same. Will it be true? C section, Arjun. Two cuboids with equal volume. क्या ये ठीक होगा? Arjun is present. Arjun doesn't want to come, huh?
D section, Vani. It's okay. G section. Now raise your hand. Good morning. Now raise your hand. Yes. Okay, first child. D section. बाकी ध्यान से सुनो, जो जिनको कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है ना, प्लीज ध्यान से सुनो. ओके. मैम फॉल्स. Why? फॉल्स. क्यों है false ये? हमेशा क्यों false? हमेशा दिखाओ ना, it is always. It depends कि आपकी वैल्यूज कैसी हैं वहाँ पे. Because it is not necessary that dimensions in the surface area will be equal. They can be different by multiplying them. Yes, we have different formula. What is the formula of volume of the ball? Volume of Length into breadth into height. LBH. Yes, simple. And what is the surface area of the ball? 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length. BH plus HL. जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है उनको तो बिल्कुल सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है. एंड मुझे पता है जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी आता था ये क्वेश्चन, बट डाउट होता है आपको मन में कि पता नहीं ठीक होगा आंसर कि नहीं होगा, है ना. प्लीज रेज योर हैंड हु थॉट ऑफ द सेम थिंग, जिनके माइंड में सेम चीज आई कि यस ऐसा ही होना चाहिए. कभी वॉल्यूम जो है इंडिपेंडेंट है, वो वॉल्यूम का उससे कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. वॉल्यूम की कैलकुलेशन डिफरेंट है, डिफरेंट आप उसमें वैल्यूज डाल रहे हो, कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है. बाई चांस हो सकता है कभी सेम आ जाए डिपेंडिंग अपॉन LBS, बट नॉट ऑलवेज. ओके. Ninth one is ratio of area of a circle to the area of square. Ratio of area of a circle and area of square. कैलकुलेट करके देखो, इसको करके देखो, एक स्टेप करो इसका. Area of circle, you know the formula, pi r square. वो तो फिक्स ही रहेगा. ओके. नाउ दे हैव सेड कि जो साइड है स्क्वायर की दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल स्क्वायर क्या होगा? ये तो आपका सर्कल का एरिया हो गया. अभी सर्कल स्क्वायर का एरिया क्या होगा? यस, Side square. साइड स्क्वायर. सबको पता है, साइड आपको पता है कि वो आर है, इट विल बी आर स्क्वायर. साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन टू यू. फाइंड देयर रेशियो. दिस है कि रेशियो ऑफ सर्कल टू स्क्वायर. प्लीज रिमेंबर यू आर राइटिंग पाई आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर, क्योंकि पहले सर्कल की बात हो रही है, बाद में स्क्वायर की बात हो रही है. ओके. व्हाट इट विल बी, कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? ई सेक्शन प्लस ई सेक्शन पलक इज देयर. ओके. ई सेक्शन से दैट ऑल. यस, बता दो बेटा. थर्ड बेंच आजू बेटे आगे. व्हाट इज कमिंग? रेशियो क्या आ रही है इसकी? Ma'am, pi ratio 1. Pi ratio 1. R square will be cancelled. Pi ratio 1 is coming. So that's Ma'am, why answer is false. it is false. That's why it is false. एक स्टेप पे इसका रीजन देखो साइड पे कि why. प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे 1 रेशियो पाई था, लेकिन वहां पे आपका पाई रेशियो 1 आ रहा है. एंड कैन यू टेल मी क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए यहाँ पे प्रूव करने के लिए? क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए थी? थिंक ऑफ इट. थोड़ा सा ना अपने ट्विस्ट करो, अपने माइंड में थोड़ा आइडिया आओ न्यू न्यू, तभी आपके क्वेश्चन ठीक होंगे. डी सेक्शन से आई कैन सी वन न्यू हैंड पीछे मिडिल रो. वेरी गुड बेटा, प्लीज कम. हाँ जी बेटा. 1 से 5 करने के लिए क्या करना चाहिए स्टेटमेंट? area of square to the area of circle. हाँ जी. ओके. ही आल्सो वांटेड टू से द सेम थिंग. ओके. उल्टा होना चाहिए था. अगर स्क्वायर ही हमारा यहाँ पे आ जाता, सर्कल इधर आता, तो हमारा उल्टा होगी, वो 1:5 बन जाता, तो वो ट्रू बन जाता. ओके. नेक्स्ट वन इज ट्रू सिलेंडर विद इक्वल. इसको तार लगा लो जिसको मुश्किल हुई है थोड़ा सोचने के लिए.
रेशियो वाला क्वेश्चन था ये, स्टार लगाओ, लेटर यू कैन रिवाइज इट. ओके, टू सिलेंडर्स विद इक्वल सरफेस एरिया हैव इक्वल वॉल्यूम. सेम स्टोरी है, क्यूबॉइड वाली स्टोरी है ये, सेम. वॉल्यूम का डिफरेंट फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का डिफरेंट होता है, तो दिस विल बी फॉल्स. डू यू अग्री दिस इज फॉल्स? रेज योर हैंड फटाफट से, जल्दी सब आपको सब पता चल गया होगा अब तो. कीबोर्ड में फॉल्स है तो इसमें भी फॉल्स होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इट कैन बी सेम बट नॉट ऑलवेज. ओके, चलो एक और चैप्टर करते हैं. आपका कंसेप्ट रिकॉल हो रहा है विद ऑल द चैप्टर. I will not tell you the name of chapter, you have to guess yourself. Okay, घर पे आप रिवाइज कर रहे हो, अब आपको पता चल रहा है कौन कौन से चैप्टर आने हैं. लास्ट फ्यू डेज से हम यही चैप्टर बार बार कर रहे हैं, है ना? तो मुझे नहीं लगता इनमें अभी कोई डाउट होना चाहिए आपको. चलो, राइट डाउन 11th point. And okay, 11th point. If D varies directly, if D varies directly, जब मैं क्लीन करती हूँ यहाँ पर थोड़ी सी लाइट राइटिंग आती है, इसलिए मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ. If D varies directly as T square, as T square. If D varies directly as T square, then D into T square is equal to K. K is constant, that you know, बहुत बार आपने यूज किया. अगर मैं नहीं भी लिखूं तो भी पता है आपको कि K constant की बात हो रही है. Okay. Next point. If X and Y, if X and Y vary inversely, if X and Y vary inversely, then X plus 1 and Y plus 1 also vary inversely. X plus 1 and Y plus 1, they are saying, वो भी vary करेंगे, inversely vary करेंगे. Thirteen, length of a square, length of a square and its area vary directly with each other. साथ साथ में सोचते भी जाओ इसको, लिखते भी जाओ और सोचते भी जाओ. Length of an equilateral triangle, of an equilateral triangle. I'm writing in short form. Length of an equilateral triangle and its perimeter. And its perimeter. Very inversely. इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी लेंथ की बात हो रही है और साथ साथ में उसके पैरामीटर की बात हो रही है.
X and Y are in direct proportion, are in ध्यान दिया करो बेटा, यहाँ पे इन सेपरेट है, इनडायरेक्ट नहीं है, वो इन सेपरेट है, डायरेक्ट सेपरेट है। अंडरलाइन करा करो इसको ना, जब यू रीड इट, कई बार पढ़ने में वो कंफ्यूजन हो जाती है कि वो इनडायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ, इन इज फार, दूर है वो थोड़ा सा, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। इफ x and y are in direct proportion, then x minus y 1, ऊपर प्लस 1 किया था हमने, यहाँ पे हम कर रहे हैं x minus 1 and y minus 1 are also in direct। डायरेक्ट को अंडरलाइन करो, यहाँ पे आपकी डायरेक्ट की बात हो रही है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। जो कॉमन मिस्टेक होती है ना बच्चों से, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, कि रीडिंग में कंफ्यूजन ना हो जाए, बिकॉज आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको let us discuss it. First is, if d varies directly as t square, then d into t square is equal to k. Who say true, raise your hand. Who say false, raise your hand. Yes, you know it, प्रोडक्ट जो होता है हमेशा वो इनवर्स के लिए यूज होता है, डायरेक्ट के लिए हम रेशियो को यूज करते हैं, d by t square। Ratio of d and t square should be constant, not their product. If x and y vary inversely, then x plus 1 and y plus 1 are also inversely proportional to each other. x and y इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो क्या उनकी एडिशन भी आपस में इनवर्स ही होंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा। तो क्या x plus 1 एंड y plus 1 वो भी इनवर्स नहीं होंगे? x एंड y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि x y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ऐसे क्वेश्चन को जब आप सोचते हो ना बेटा, थिंक ऑफ इट कि आपकी एक ही टेबल की बात हो रही है, एक ही टेबल के अंदर एक वैल्यू आपकी x और y की बात हो रही है, दूसरे में वो x plus 1 और y plus 1 की बात कर रहे हैं। ओके, थिंक इन दैट वे। ये मत सोचो कि x plus 1 y plus 1 कुछ और किसी और क्वेश्चन की बात है और x y किसी और क्वेश्चन की बात है, ऐसा नहीं है। ये जी सेक्शन फर्स्ट बॉय, आज मैंने आपसे कोई आंसर नहीं पूछा। False. दिस इज फॉल्स। व्हाई? And because if we take x equals 2 and y is equals 3, then xy equals 6, which is a constant, and if we x plus 1, which will become 3, and y plus 1, which will become 4, 3 into 4 is 12. Yes. They are not equal. Yes, they are not equal। हमारा पर्पस है कि वो इक्वल नहीं है। एक्स वाई आपके पास अगर k1 आ रहा है तो x plus 1 और x y plus 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो k2 आएगा, कोई और आएगा, k1 नहीं आएगा। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, इसलिए मैंने टेबल में आपको समझाया कि एक ही क्वेश्चन की बात हो रही है, एक वैल्यू में हमारी एक्स और वाई की बात हो रही है, अगली वैल्यू अगर उसकी प्लस 1 करके आ गया, यहाँ पे 3 और 4 है, वहां पे आपके पास 1 1 प्लस करके आ गया, तो क्या उनकी रेशियो सेम होगी या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन सेम होगा? नेवर। ठीक है, आपने जितने भी डायरेक्ट वाले क्वेश्चन किए हैं या इनवर्स वाले क्वेश्चन किए हैं, आप देखते हो कि उनका प्रोडक्ट सेम आता है हमेशा, हमेशा उनका प्रोडक्ट आपका 42 42 42 आ रहा है, तभी आप बोलते हो कि वो इनवर्स है। बट इस केस में प्रोडक्ट विल नॉट बी सेम, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो गई है और वो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, एक ही क्वेश्चन के अंदर वो मैच नहीं करेंगे, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज, length of a square and its area vary directly with each other। स्क्वायर और इसके एरिया की बात हो रही है।
स्क्वायर एंड एरिया, स्क्वायर की लेंथ, क्या वो एक वेरी करेंगे डायरेक्टली? मैम यस, ट्रू आंसर। मैं अगर मैम लेंथ ऑफ द स्क्वायर मैम इंक्रीज करेगी तो मैम उसका एरिया भी इंक्रीज होगा। एरिया भी इंक्रीज होगा, दैट इज ओके, बट हम ओनली इंक्रीज और डिक्रीज की बात नहीं करते ना, जब हमने क्वेश्चन किए थे। मैम वो मैम एक्चुअली में एक स्क्वायर है मैम, उसके मैम हर एक मैम साइड इक्वल होती है। हाँ, इट इज देयर। डिक्रीज अगर हम सिर्फ ये देखें ना कि सिर्फ इंक्रीज ही हो रहे हैं इकट्ठे और डिक्रीज ही हो रहे हैं, तो फिर तो ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज क्या होगा? लेंथ ऑफ स्क्वायर एंड इट्स एरिया वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर, इकट्ठे तो इंक्रीज करेंगे, उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी तो एरिया भी बढ़ता जाएगा, दैट इज श्योर। ठीक है, तो इज इट ट्रू कि उनके रेशियो भी सेम ही आता जाएगा हमेशा? ठीक है, आपका जो साइड का स्क्वायर है उसकी साइड मान लो आपके पास ए है, तो उसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर। हाँ जी, डी सेक्शन, यस, एक्सप्लेनेशन, आई वांट न्यू मैम फॉल्स। हाँ मैम फॉल्स because in direct proportion we know that x1 over y1 is equals x2 over y2 हाँ y2. Then if we concluded that if let's take a example length of a square equals 2, so हाँ, its perimeter its area become 4. If the we take the side equals 3, then its perimeter become 9. After cutting it is equals 1 by 2 equals, no, it is not equal to 1 by 3, so that's why it is not in direct proportion. वही बात हो रही है, सेम चीज बात हो रही है, सेम चीज ऊपर जो हमने की है वही बात हो रही है बेटा। देखो जब हमने क्वेश्चंस किए थे डायरेक्ट के, हमने डिस्कस किया था कि अगर दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, लेंथ एंड एरिया, यू कैन से इट इज डायरेक्ट, बट दिस इज इनकम्प्लीट। आपको चेक करना है क्या उनका रेशियो भी इक्वल आ रहा है। जब तक रेशियो नहीं इक्वल आ रहा आप नहीं बोल सकते कि वो डायरेक्ट है। ओके, इमेजिन इट, टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लिया कि लेंथ अगर उसकी मान लो 2 है तो उसका एरिया क्या होगा? 4 होगा। अगर उसकी लेंथ मान लो 3 है तो उसका एरिया होगा 9। क्या उनकी रेशियो सेम है? No. नो, रेशियो इज नॉट सेम। ठीक है, रेशियो इक्वल आनी बहुत जरूरी है, आपने पूरे चैप्टर में यही चीज को आपको माइंड से निकल जाता है हमारा। प्लीज ध्यान दो बेटा, इनवर्स में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, लेकिन उनका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। दोनों चीजें, दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज डिक्रीज प्लस देयर प्रोडक्ट। डायरेक्ट में देयर रेशियो इक्वल होनी बहुत जरूरी है, एज वेल एज इंक्रीज और डिक्रीज तो होना ही है। ठीक है, अगर आप सिर्फ वर्बली सोचो, अगर आप सिर्फ उसका थ्योरेटिकल पार्ट सोचो कि दोनों इंक्रीज हो रही है, यस दे आर डायरेक्ट, बट दिस इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जब तक आपने उसको कैलकुलेट करके नहीं देखा, एग्जांपल लेके नहीं देखा। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, if x varies directly as y square, then y will also vary directly as another variable square. यस, वही तो बात हो रही है बेटा। Ma'am, अगर so मैं इसकी बात करूँ कि कोई भी आप नंबर लो, कोई भी एल ले लो, उसके साथ एरिया इंक्रीज होगा, एल इंक्रीज हो रही है तो एरिया भी इंक्रीज होगा ऑफ कोर्स। कोई भी आप फिगर ड्रॉ करते हो, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। एल इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी इंक्रीज होगा, एल डिक्रीज होगा तो एरिया भी डिक्रीज होगा, ये तो श्योर है। बट हमें कैलकुलेशन में भी देखना है, एग्जाम्पल लेके देखना है। एग्जाम्पल लेके देखो कि क्या उनकी रेशियो सेम आ रही है डायरेक्ट के लिए। अगर हम एग्जाम्पल लें कि लेंथ हमारे पास 2 है तो उसका एरिया कितना आएगा? 4 आएगा। इसकी रेशियो फिर क्या आई? एल रेशियो ए क्या आई हमारे पास? 2:4, दैट इज इक्वल टू 1/2। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 और 9 की अगर हम बात करें, इट इज नॉट कमिंग टू 3/9 इज नॉट इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे 1/3 आ रहा है, 1 यहाँ पे 1/2 आ रहा है। अगर सेम क्वेश्चन की बात करें, हम ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले इंक्रीज डिक्रीज वाले, हम एक ही टेबल के अंदर बात करते हैं, वन टेबल की बात हो रही है, उसके अंदर ही आपको 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू जो है उनको चेक करना है कि क्या वो इकट्ठी उनकी रेशियो सेम आ रही है। इज इट क्लियर नाउ बेटा?
टेक एन एग्जांपल एंड चेक, नंबर लेके सोचो। थैंक यू। ओके, लेट अस फिनिश इट, आपका टाइम भी हो रहा है। सिमिलरली लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इट्स पैरामीटर, लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ही क्वेश्चन की बात करना, अब आपके माइंड में होना चाहिए कि एक ही टेबल के अंदर वैल्यूज है अलग अलग। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, इसमें फिर क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके पैरामीटर की बात हो रही है, इसमें भी क्या होगा, पॉज होगा, सेम चीज, रेशियो आपकी इक्वल नहीं आ रही है। ओके, एंड लास्ट वन 15, दैट इज आल्सो फॉर्मल, सेम बेसिस, सेम एग्जांपल जो हमने किया था प्लस वाला, सेम एग्जांपल हमारा माइनस वाला है कि हमारे पास अगर वैल्यू हम एक्स और वाई की ले रही है तो माइनस करके चेक कर लो कि क्या उनकी रेशियो सेम आती है, नो। ओके, 15 भी आपके पास फॉल्स होगा, दिस इज आल्सो फॉल्स, दिस इज आल्सो फॉल्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू बेटा। यस ओके गुड, प्लीज रिमेंबर, एग्जांपल लेके देखो, नंबर कोई भी नंबर, टू नंबर पिक करो, उनको चेक करके देखो उनका प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है, रेशियो सेम है कि नहीं है, वहां से आपने यस और नो टू या फॉल्स बताना। ओके, चलो बाय बेटा, ऑल द बेस्ट।